Friends, good morning to all of you. How are you all? Hope so that you are good and enjoying the best of your health by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Okay students, in the previous lecture I have given you some questions to solve, so hurry up, open your books, open your last lectures and the questions which I have given to you. These questions are on page number 25. Okay, we have read about the topic of cloning in plant. Okay, we have read cloning in plant, and we have also discussed the natural clones. Okay, micropropagation and tissue culture. Now I have given you the questions. Now we come on the topic of today's lecture. Firstly, we will discuss the answer of these questions, then we will move towards our today's work. Okay, the questions were, what is clone? Clone क्या है? ठीक है. Now on page number 22, clones are genetically identical organisms. Clone क्या है? Genetically identical organism, यानी कि उनके जीन्स में सिमिलरिटी है, बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? क्लॉन्स कहते हैं. Here question number 2, explain how sexual reproduction is different from asexual reproduction. Okay, sexual reproduction में gametes are involved. Gametes are involved. ठीक है, gametes involve होते हैं. ठीक है, while in asexual reproduction gametes are not involved. Okay, gametes involve नहीं होते. This is the main difference of sexual and asexual reproduction. Second difference, in asexual reproduction genetically identical. यहाँ पर gametes are not involved. Are not involved. ठीक है, और इसके साथ साथ genetically genetical identical. ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं, जबकि यहाँ पर जेनेटिकली वेरिएशन पाई जाती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली वेरिएशन पाई जाती है. क्यों पाई जाती है? वेरिएशन क्यों पाई जाती है? वेरिएटेड क्यों होते हैं? क्योंकि डिफरेंट पेरेंट से गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, यानी कि जेनेटिकली जेनेटिकली वेरिएशन इज प्रेजेंट. जेनेटिकली वैरिड भी कह सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज रनर? रनर क्या है? ओके, ऑन पेज नंबर 23 हेयर, रनर्स आर स्पेशल स्टेम्स. ठीक है, रनर्स क्या हैं? स्पेशल स्टेम्स एंड दैट स्प्रेड ओवर द ग्राउंड. ठीक है, रनर्स आर स्पेशल स्टेम्स दैट स्प्रेड ओवर द ग्राउंड. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड बी, व्हाट इज अ tuber. Okay, tuber क्या है? A tuber is an underground stem है that becomes swollen with stored food, जो stored food की वजह से swell हो जाती है. ठीक है, what is tuber? Okay, next है आपके पास what is bulb? Bulb क्या है? A bulb is a large underground bird है with swollen leaves full of food, जिसके swollen leaf होते हैं, फूले हुए leaves होते हैं, और उसमें क्या होता है? full of food. Okay, question number 4, what is cutting? Where are cutting taken from? Here is the answer. A cutting is a piece taken from a living plant. ठीक है, एक आंसर है. A cutting is a piece taken from a living plant. और कटिंग आती कहाँ से है? कटिंग आर यूजुअली टेकन फ्रॉम, ली कहाँ से जाती है? अक्सर टेकन फ्रॉम अ स्टेम से ली जाती है, बट मे बी टेकन फ्रॉम लीव्स और रूट, लेकिन उसे लीव्स और रूट से भी लिया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन? माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है? हियर इज द आंसर. माइक्रो प्रोपोगेशन means growing new plant from very small microscopic pieces. Okay, micro propagation is growing of new plants from very small microscopic pieces. ठीक है, micro propagation कहलाती है. Okay, question number 6, explain why condition for micro propagation must be sterile. Okay, क्यों इसकी कंडीशन स्टेराइल होनी चाहिए? ठीक है,
टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, ठीक है। कंटेमिनेशन देखिए, मस्ट बी दीज स्पीसीज आर स्टरलाइज्ड, क्यों होनी चाहिए, क्यों माइक्रो प्रोपगेशन में पढ़ा था हमने, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, ठीक है। कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें स्टरलाइज कंडीशन रखते हैं। व्हाट इज़ अ ग्रोथ मीडियम? ग्रोथ मीडियम क्या है, ठीक है। ग्रोथ मीडियम इज एवरीथिंग दैट प्लांट नीड फॉर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ मीडियम कंटेन एवरीथिंग दैट प्लांट नीड्स फॉर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ। ग्रोथ मीडियम वो है जो प्लांट को हेल्दी और नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हर चीज़ जो प्लांट को नॉर्मल एंड हेल्दी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है वो उसमें होती है, इसलिए उसे ग्रोथ मीडियम कहा जाता है। ओके, व्हाई डज अ ग्रोथ मीडियम कंटेन हार्मोन्स? क्यों हार्मोन्स होते हैं? ग्रोथ मीडियम कंटेन हार्मोन्स टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ न्यू रूट्स, यानी कि न्यू रूट्स की ग्रोथ को इनकरेज करने के लिए क्या होता है, ग्रोथ मीडियम में हार्मोन्स पाए जाते हैं। ओके, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के 2 एडवांटेज बताएं। तो टिश्यू कल्चर का 2 एडवांटेजेस ये हैं, दिस टेक्निक इज़ वेरी क्विक एंड डज नॉट टेक मच स्पेस, ठीक है। यानी कि दिस टेक्निक इज़ वेरी क्विक, बहुत जल्दी ये टेक्निक बहुत फास्ट वर्क करती है, एंड डज नॉट टेक मच स्पेस। दूसरा एडवांटेज क्या है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, ठीक है। नंबर 9, गिव 1 बिग डिसएडवांटेज ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग का एक बड़ा डिसएडवांटेज बताएं, क्योंकि इसमें जेनेटिकल वेरिएशन नहीं पाई जाती, सब क्या होता है, सेम आते हैं, जेनेटिकली वेरिएटेड नहीं होता, वेरिएशन नहीं होती क्लोनिंग में, देयर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, VARIATI, there is no genetic variation, ठीक है। This is the disadvantage of क्या किसका, क्लोनिंग, ठीक है। Okay student, here we have completed our chapter number 2. हमने अपना चैप्टर नंबर 2 का वर्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई विल टेल यू विच क्वेश्चन यू हैव टू कॉपी इन योर कॉपी, ठीक है। आपने कौन से कॉपी में अपने ये वाले क्वेश्चंस कॉपी करने हैं, ठीक। जस्ट मैं आप लोगों को मार्क करवा रही हूँ, तो जब मैं आपको PDF सेंड करूँ तब आप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर आप अभी मार्क किए हैं आपने मेरे साथ डिस्कस करते हुए क्वेश्चंस, तो आप कॉपी वर्क में कर सकते हैं। ओके, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इन योर कॉपी। ओके, ये 3 क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी में करने हैं, बाकी आप अपने बुक में ही रहने दीजिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। 1 लाइन आंसर्स हैं, मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए, दैट्स एनफ। ओके, नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पर आ जाए, मैं आपको एक्सरसाइज आपसे डिस्कस कर लूँ। Okay, first question is multiple choice. Multiple choice questions are here. Okay, number 1 statement, which part of the flower protects it when it is a bird? फ्लावर का कौन सा पार्ट उसकी प्रोटेक्शन करता है जब वो बर्ड की फॉर्म में होता है? देन इट इज आंसर इज सेपल। नंबर 2, विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर प्रोड्यूस पॉलन? पॉलन कौन प्रोड्यूस करता है, यानी कि फ्लावर का कौन सा पार्ट पोलन प्रोड्यूस करता है? एंथर, ठीक है। नेक्ट्री, नेक्ट्री में स्वीट सोल्यूशन होता है, पेटल्स आपके कलरफुल होते हैं और सेपल्स आपके ग्रीन जो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 3, ऑन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर डू पोलन ग्रेन्स लैंड ड्यूरिंग पॉलिनेशन? पॉलिनेशन के दौरान कौन से पार्ट ऑफ फ्लावर पर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं? फिलामेंट, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा पर, ठीक है। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के दौरान इसमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? पहले फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जर्मिनेशन, देन पॉलिनेशन। जर्मिनेशन पहले होती है, पॉलिनेशन होती है, देन फर्टिलाइजेशन। ओके, पहले पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, देन जर्मिनेशन होती है। पॉलिनेशन, जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले पॉलिनेशन होती है, देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके नतीजे में क्या बनते हैं? सीड्स बनते हैं, सीड जर्मिनेट करता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन। नंबर 5, अ फुली डेवलप्ड ओवरी, यानी कि कंप्लीट डेवलप्ड ओवरी विद सीड इनसाइड, उसके अंदर जिसके अंदर सीड होते हैं, इज कॉल्ड फ्रूट। क्या कहलाती है? फ्रूट। हर्ब, स्पाइसी, वेजिटेबल, क्या कहलाती है? फ्रूट। ओके, हेयर इज ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, दीज स्टेटमेंट्स आर वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको अगेन लास्ट टाइम की तरह
स्टेटमेंट को ट्रू करके भी लिखना है, ठीक है। जैसे आपके पेपर में आता है, आपको अगर स्टेटमेंट आपका फॉल्स है तो उस स्टेटमेंट को आपने ट्रू करके भी लिखना होता है। सो हेयर यू हैव ऑल्सो राइट डाउन द ट्रू स्टेटमेंट। आपको ये ट्रू फॉल्स का काम अपनी कॉपी में करना होगा, ठीक है। हेयर A stamen is the male reproductive organ of the plant. Stamen male reproductive organ है, ठीक है। stamen है या कौन है, ठीक है, सोचे। Yes, it is stamen. stamen ही है, true. Some pollen grains have wings to help them stick to the body of insects. Some pollen grains के wings होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं कि वो insects की बॉडी से स्टिक कर जाएं. That is false. wings वाले pollen grains क्या हेल्प करते हैं? फॉल्स स्टेटमेंट तो विंग्स होंगे तो क्या होगा, टू हेल्प देम ब्लोन अवे बाय द एयर करंट्स, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं लिख कर दिखा देती हूँ. हियर इज द आंसर. सम पोलन ग्रेन्स हैव विंग्स सो दैट दे कैन बी blown over long distance by air. Okay, so this was the wrong statement. I have shown you the correct one. Okay, this one is correct. Okay, number 3, cross pollination is when pollen from one flower land on a stigma of the same flower. क्रॉस पोलिनेशन तब होती है जब when pollen from one flower land on the stigma of the same flower, यानी कि एक ही फ्लावर का पोलन उसी के फ्लावर पर स्टिग्मा पर लैंड करते हैं. या तो सेम की जगह डिफरेंट फ्लावर कर लें या फिर क्रॉस पॉलिनेशन की जगह सेल्फ पॉलिनेशन कर लें. ये दोनों ऑप्शन है. आप अगर इन दोनों में से कोई भी करेक्ट करेंगे तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. लाइक सेल्फ पॉलिनेशन इज व्हेन पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक है, तो ये आ जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन. और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ सेम की जगह डिफरेंट कुछ भी कर लें, आपका स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा. क्रॉस पॉलिनेशन तब होती है जब डिफरेंट फ्लावर पर जाता है. ठीक है, वन फ्लावर यानी कि पोलन फ्रॉम वन फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर. ठीक है, ये चेंज कर लें. या फिर आप लिख दें सेल्फ पॉलिनेशन होती है जिसमें सेम फ्लावर सेम पोलन ग्रैंड्स सेम फ्लावर के पोलन ग्रैंड्स सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं. ओके, सो वी विल चेंज हेयर. इट इज़ ईजी, डिफरेंट कर देंगे. ठीक है, हम यहाँ पर डिफरेंट कर देंगे. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. Number 4, the embryo root is the first part of seed to germinate. Embryo root जो हैं first part of seed हैं जो germinate होते हैं. That is true. Okay, root सबसे पहले grow होते हैं. Cloning of plant produce plenty of genetic variation. Cloning of plant क्या करती है, यानी कि genetic variated plant produce करती है. No, cloning of plant, this is wrong statement. Cloning of plant produce identical genetic organism. ठीक है, ऑर्गेनिज्म और प्लांट आइडेंटिकल प्लांट कर लें. जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट. ठीक है, वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होती. रॉन्ग स्टेटमेंट है. ठीक. Okay, now come on page number 27. Here we have filling the blanks and you have to fill the blanks. I have already filled one. मेरे पास already filled one है, but मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कैसे इस तरह options है. Okay, here is the options. आप यहाँ options given है, आपको ये options इनमें ब्लैंक्स में फिल करना है. पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन किसके बाद फॉलोड होती है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. पॉलिनेशन के बाद एज इन एनिमल्स में द न्यूक्लियस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सेल मस्ट ज्वाइन अप द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल. यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल के न्यूक्लियस को फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के न्यूक्लियस से मिलना होता है बिफोर अ न्यू प्लांट कैन बी फॉर्म. एक नए प्लांट के बनने से पहले. When it lands on the stigma of the female reproductive organ, जब वो female reproductive organ के stigma पर land करता है, a pollen grain grows a tube. pollen grain क्या grow करता है, tube grow करता है which goes down to the ovary, जो ovary तक जाती है. where it enters the ovule, जहाँ पे वो ovule में एंटर होती है. मेक न्यूक्लियाई ज्वाइन विद द फीमेल न्यूक्लियाई. मेल न्यूक्लियाई किससे ज्वाइन होता है, फीमेल न्यूक्लियाई से ज्वाइन होता है. एंड फर्टिलाइज इट, और उसे फर्टिलाइज कर देता है. ओके, देयर इज द ऑप्शन. यू हैव टू पुट दीज ऑप्शंस इन योर ब्लैंक्स. आफ्टर दैट यू हैव गिवन द डायग्राम ऑफ फ्लावर. ठीक है, आपको फ्लावर की डायग्राम गिवन है.
you can take a look. नंबर 1, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर, लेबल ए टू एच, ए से लेकर एच तक आपको अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं. यू हैव टू लेबल द डायग्राम. ओके, हियर इज़ द लेबलिंग. नंबर 1 इज स्टिग्मा, नंबर बी इज एंथर, नंबर सी इज नेक्ट्री, नंबर ई इज ओवरी, नंबर डी इज सेपल, नंबर एच इज फिलामेंट, नंबर जी इज स्टाइल, नंबर एफ इज पेटल. Okay, here is the name of the labeling, names for labeling. We have to put these labeling over there. Okay, which part, now question number 2 is which part make the male reproductive cell? As we read, male reproductive cell is made by anther. Okay, which part attract the insects? Petals. Which part is sticky to collect pollen grains from insects? Which part is sticky? Stigma is sticky. Okay. Okay student, this is all about today's lecture. आज के लेक्चर में यही. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल मेक यू राइट द फिलिंग द ब्लैंक्स. मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करवाऊंगी. एंड आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस एंड ट्रू फॉल्स कर लिए हैं. अभी आपने अपनी कॉपी में ये एक्सरसाइज वर्क नहीं करना है. फर्स्ट हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, देन आप ये ट्रू फॉल्स उतार लीजिएगा. आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. आपको मैं एक काम और दे रही हूँ. आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद आपने एक क्वेश्चन और ऐड करना है, जो है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर. ठीक है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर, फ्लावर की लेबल डायग्राम. जो आपने को मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं हेयर, ये जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं. इसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर. फ्लावर की लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है अपनी कॉपी में. इन 3 क्वेश्चंस को उतारने के बाद आप ये वाला क्वेश्चन उतारेंगे और आप हेयर फ्रॉम हेयर यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस. ओके, ये आप ये वाली ड्रॉ कर लें और चाहें तो आप ये वाली ड्रॉ कर लें. बेटर ये है आप ये वाली ड्रॉ करें. ठीक है, बोथ आर एक्सेप्टेबल. ओके, एंड यू हैव टू लेबल दिस डायग्राम. गॉट इट. आपने उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स का वर्क करना है, जो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी. देन आप ट्रू फॉल्स का वर्क करेंगे. आपके आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी था. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वर्क करवाऊंगी. टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड बी इन टच, बी रेगुलर, बी पंक्चुअल एंड डू रेगुलर वर्क. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.